So here is the part 2 of my video, numerical on states of matter. And this time I'm going to solve some numericals on Charles' law. Okay, so what is Charles' law? You all know that Charles' law says that volume of given mass of a gas is directly proportional to temperature, keeping pressure constant. So if pressure is constant, volume of given mass of a gas is directly proportional to the temperature. That means कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं किसी गैस का, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती जाएगी. दैट इज ऑब्वियस. टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ती है, ऑब्वियसली. व्हाई? बिकॉज molecules gain energy, expand होते हैं, and hence volume increases, but keeping pressure constant, right? And इसका mathematical formulation क्या है? Mathematical representation जिसके पे हम बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, that is V1 by T1 is equal to V2 by T2. That means if V1 is the initial volume of the gas at a temperature T1 and the temperature over here is in Kelvin scale, then V2 is the volume when the temperature is T2. ठीक है, so इसी को यूज करके we will be solving some numericals on Charles law. ठीक है, चलिए let's start. So the first numerical is very simple. It says a gas balloon has a volume of 0.5 decimeter cube at 100 degrees Celsius and 1 bar pressure. What will be the volume of the balloon at 0 degrees Celsius? Okay, and यहाँ पे they have not given but understood है कि there is no change in pressure. No change in pressure. I think यहाँ से typing में miss हो गया है, but if it is not given then also here we have to assume that there is no change in pressure. So what are they saying कि एक गैस बलून है जिसकी वॉल्यूम क्या है 0.5 डेसीमीटर क्यूब है when at temperature is equal to 100 degree Celsius. Okay, and pressure 1 atm. So what do we have to do? We have to calculate. हमें वॉल्यूम निकालनी है जब टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर अगेन सेम, नो चेंज, दैट इज 1 atm पे. ठीक है, सो वी विल अप्लाई, what we will do, we will use Charles law. Okay, so apply Charles law here, which says V1 over T1 is equal to V2 over T2. But first convert these temperatures to Kelvin scale, right? So T1 in Kelvin scale will be equal to 100 degrees Celsius plus 273, that is 373 Kelvin, and T2 will obviously 0 degrees Celsius is equal to 273 Kelvin. So substitute 0.5 over 373 is equal to V2 over 273, and this gives us V2 is equal to 0.5 into 273 upon 373, and this will be equal to 0.3659, which we can approximate as 0.366 decimeter cube, right? So this was very simple numerical, that the final volume at 0 degree Celsius will be 0.366 decimeter cube. and आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर हाई था तो वॉल्यूम ज्यादा थी, जब टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया तो वॉल्यूम भी कम हो गई. सो दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल ऑन चार्ल्स लॉ. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल. At what centigrade temperature will a given volume of a gas at 0 degree Celsius become double its volume, pressure remaining constant? तो हमें ये कहा है कि किस टेम्परेचर पे, हमें इसमें आंसर सेंटीग्रेड स्केल पे निकालना है. जो हम चार्ल्स लॉ की इक्वेशन लगाते हैं V1 by T1 is equal to V2 by T2, इसमें टेम्परेचर is in Kelvin scale, but we have asked here
दैट एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमें जो आंसर देना है वो सेंटीग्रेड टेम्परेचर में देना है, सेल्सियस में देना है, हमें डिग्री सेल्सियस में देना है। विल द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो हमें नहीं दिया है कि क्या वॉल्यूम है, एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बिकम डबल इट्स वॉल्यूम, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ऑब्वियसली इस इक्वेशन में हम केल्विन स्केल पे ही निकालेंगे टेम्परेचर। फर्स्ट we will calculate temperature in Kelvin scale and then we will obviously convert it into degree Celsius. Okay, so मान लेते हैं इन्होंने क्या बोला है कि given volume of a gas at 0 degree Celsius. So let us suppose that at 0 degree Celsius, which is what Kelvin में 273 Kelvin. Okay, the volume is equal to V, and then they said किस टेम्परेचर पे ये डबल हो जाएगी. Okay, let at temperature T volume becomes double of its original value, that is 2V. So from here T1 is equal to 273 Kelvin, V1 is equal to V, T2 we have to calculate, that is T, and V2 is 2V. So substitute in the equation, in this equation, V upon 273 is equal to 2V upon T. So this implies T is equal to 2V, यहाँ से V cancel हो गया, so T is equal to 2 into 273, so that is equal to 546 Kelvin. Now we have to calculate in what? Centigrade temperature. So in degree Celsius 546 Kelvin में से क्या करना पड़ेगा हमें? 273 को माइनस करना पड़ेगा. So this will give us, this will become 273 degrees Celsius. So in degree Celsius, this is the value at which temperature of a gas, volume of a gas becomes double of its original value. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे V था, so 273 डिग्री सेल्सियस पे वो 2V हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, next move to next numerical. So the next numerical says, okay, yes, so at what temperature on Celsius scale will the volume of a given mass of a gas at 0 degree Celsius become half of its volume at constant pressure? Now here last में कैसा था, डबल हो रही थी वॉल्यूम, इसमें हाफ हो रही है. सिमिलर न्यूमेरिकल, ठीक है, पहले हम केल्विन पे निकालेंगे फिर हम डिग्री सेल्सियस में रिजल्ट निकालेंगे. इसमें वॉल्यूम हाफ हो रही है. सो लेट अस सपोज, let the volume at 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, is equal to V. Okay, then the volume, therefore the volume at temperature T that we don't know is equal to V by 2. So let us calculate T. V1 T1 is V1 over T1 is equal to V2 upon T2. So V1 is equal to V, T1 is 273, V2 is V by 2, and T2 is T that we have to calculate, right? So V upon 273 is equal to V upon 2 upon T. ये cancel out हो गया. This gives us T की value 273 upon 2, which is equal to 136.5 Kelvin. So in degree Celsius, this value will come out to be 136.5 में से
आई मीन 273 माइनस कीजिए, सो दिस विल बिकम माइनस 136.55 डिग्री Celsius. So that will be the value. That will be the value in Celsius scale. Okay. So in this way हमने ये जो न्यूमेरिकल किया एग्जैक्टली सिमिलर है टू द लास्ट वन, बट इसमें वॉल्यूम v/2 हो रही है, मतलब हाफ हो रही है, उसमें वॉल्यूम क्या हो रही थी, डबल हो रही थी. सो दीज आर दी सिमिलर न्यूमेरिकल्स. ओके, बोथ ऑफ देम. सो ऐसे कुछ भी आ सकता है कि वॉल्यूम आपको 1/4 कर दी, 1/8 कर दी, तो आप निकालिए टेम्परेचर. ठीक है, तो आपको सेम वे यूज करना है, सेम प्रोसेस यूज करनी है एंड कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. To what temperature must a gas at 127 degrees Celsius be cooled so that its volume is reduced to 1/5 of its initial volume? मैंने बोला था ना अभी कि वॉल्यूम कुछ भी हो सकती है, तो 1/5 कर दिया इनिशियल वॉल्यूम की. Pressure remaining constant. At to what temperature must a gas at 127 degrees Celsius? मतलब इनिशियली गैस किस टेम्परेचर पे थी, 127 डिग्री सेल्सियस पे है. तो T1 क्या था, 127 डिग्री सेल्सियस. दैट इज 127 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 400 केल्विन. हमें बोलना है, पूछना है, हमें ये पूछा है कि इस टेम्परेचर पे को कितना रिड्यूस करें, कितना आई मीन कूल करें, ऑब्वियसली, ताकि उसकी जो वॉल्यूम है इस टेम्परेचर पे, सपोज इस टेम्परेचर पे लेट इट बी V है वॉल्यूम, वो क्या हो जाए, वॉल्यूम इसका 1/5 हो जाए. दैट इज इक्वल टू V/5. सो वो टेम्परेचर निकालना है हमें जिसपे उसकी वॉल्यूम 1/5 हो जाए ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. T1 क्या था, जब इनिशियली टेम्परेचर क्या है 400 केल्विन है, तब वॉल्यूम क्या है V. ये हमने सपोज की है. हमें बताना है कि हमें वो टेम्परेचर निकाल के बताना है कि जब वॉल्यूम जो है 1/5 हो जाएगी तब क्या टेम्परेचर होगा. ठीक है, सो एग्जैक्टली सिमिलर एज वी डिड अर्लियर. थोड़ी सी टेम्परेचर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यूज डिफरेंट है. सो अप्लाई चार्ल्स लॉ. V1 इज व्हाट, V. T1 is what, 127 plus 273, that is 400. This is equal to V/5 और ये हमें कैलकुलेट करना है. सो V कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, एंड T2 is equal to 400 upon 5 which is equal to 80 Kelvin. सो हमें क्या इन डिग्री सेल्सियस अगर पूछें, जनरली ये डिग्री सेल्सियस में मांगते हैं. सो इन डिग्री सेल्सियस दिस इज इक्वल टू 80 minus 273. This is equal to minus 193 डिग्री सेल्सियस. सो ऐसे मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं जिसमें कि हमें ये पूछा है कि टेम्परेचर निकालो जिसपे वॉल्यूम जो है ये चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, इतनी रिड्यूस हो रही है. ठीक है, अब चलिए कुछ कुछ सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. न्यूमेरिकल करते हैं. नेक्स्ट वन. सो इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 800 ml ऑफ अ गैस बाय 20%. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था, अब इसमें वॉल्यूम को इंक्रीज किया है बाय 20%. इनिशियली वॉल्यूम क्या थी 800 ml, इसको क्या किया है इंक्रीज बाय 20%, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. टू व्हाट टेम्परेचर द गैस इज हीटेड इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस. मतलब इनिशियली टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मैं पहले ही केल्विन में कर लेती हूँ उसको, दैट इज इक्वल टू 295 केल्विन. राइट, ये कह रहे हैं कि अब हमें, अतः वॉल्यूम क्या थी 800 ml. हमें क्या करना है, वी आर डिजायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम. सो इस वॉल्यूम को इंक्रीज करना है बाय हाउ मच, बाय 20%. ठीक है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. तो हमें टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ाना ही पड़ेगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. सो टू व्हाट टेम्परेचर द गैस बी हीटेड. सो बेसिकली इसको इंक्रीज करने पे जो हमारी वॉल्यूम आएगी ना V2, दैट वैल्यू को अचीव करने के लिए हमें क्या टेम्परेचर चाहिए, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. अब ये वैल्यू क्या आएगी, इट इज इंक्रीज बाय 80%, दैट मीन्स इंक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स 20% ऑफ 800 प्लस 800. सो इंक्रीज बाय 20% का मतलब ये हुआ. सो पहले हम क्या करते हैं, इंक्रीज निकाल लेते हैं, तो मतलब V2 कितना है वो निकाल लेते हैं. सो V2 इज इक्वल टू
20% of 20 into 800 upon 100 plus 800, दिस इज इक्वल टू 960। ठीक है, तो ये 960 ml आ गया हमारे पास। V2 आ गया, T2 हमें निकालना है, T1 पता है, V1 पता है, वेरी सिंपल। सो अप्लाई चार्ल्स लॉ, V1 by T1 is equal to V2 by T2 and what is the value of V1? 800, टेम्परेचर क्या था इनिशियल 295, V2 क्या है 960, T2 we have to calculate, तो मैं यहाँ पे करती हूँ कैलकुलेट, T2 is equal to 960 into 295 upon 800, ये कट गया, ये हमारा आ गया 8 12 और ये आ जाएगी वैल्यू हमारी सॉरी यहाँ पे आएगा 10, ये 8 पे जाएगा, तो ये आ गया 354 केल्विन। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी 354 केल्विन। सो दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 354 minus 273 which is equal to 81 डिग्री सेल्सियस। सो आई थिंक अब आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की काफी क्लैरिटी हो गई होगी कि जब भी ऐसा है कि हमें वॉल्यूम रिड्यूस करनी है, 1/5 करनी है या बढ़ानी है, डबल करनी है, या हमें 20% बाय 20% इंक्रीज करनी है, ठीक है, अगर 20% से डिक्रीज आ जाए तो सिमिलरली इनिशियल वॉल्यूम में से उसका 20% माइनस कर देना, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सो ऐसे करके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यूजिंग चार्ल्स लॉ। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट वेराइटी। एट कांस्टेंट प्रेशर अ गैस एट -33 डिग्री सेल्सियस is heated to 127 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, परसेंटेज इंक्रीज दिया था कि हमने 20% इंक्रीज किया है, इसमें हमें निकालना है, कैसे निकालना है और हमें क्या क्या दिया है। हमें कहा है एट कांस्टेंट प्रेशर अ गैस एट -33 डिग्री सेल्सियस विच विल बी इक्वल टू व्हाट, -33 plus, I mean in Kelvin scale it will become 240 Kelvin, is heated to 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको हीट किया है 127 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वैल्यू विल बी इन केल्विन स्केल 400 केल्विन। व्हाट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ऑब्वियसली इंक्रीज तो होगा बिकॉज टेम्परेचर को बढ़ाया है, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, सो वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। सपोज यहाँ पे वॉल्यूम V है, लेट अस सपोज, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, सो वॉल्यूम विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, तो हमें वो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना। हाउ कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इज व्हाट, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम में डिफरेंस आया, V2 माइनस V1 बेसिकली, चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑब्वियसली V2 ज्यादा है V1 से, डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100। सो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, जो हम V2 निकालेंगे माइनस V1 अपॉन V1 इनटू 100 विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, और हमें यही बोला है निकालने के लिए। सो परसेंटेज इंक्रीजेस दिस। नाउ अब ये कैसे आएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, V2 V1 एंड ऑल, ये बहुत इजी है, ये ऐसे आएगा, देखिए यहाँ से। नाउ वी विल अप्लाई चार्ल्स लॉ, V1 by T1 is equal to V2 by T2, this implies V1 is what, पता नहीं है क्या है, T1 240, V2 is what, don't know, T2 is what 400। यहाँ से हम V1 by V2 निकाल लेते हैं, मतलब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 240 अपॉन 400, यही था ना, V1 V2 नीचे आ गया, ठीक है। सो
दिस इज इक्वल टू, ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 6/10, this is equal to 0.6. So V1 upon V2 is equal to 0.6. This implies V1 is equal to 0.6 V2. So V1 जो है वो V2 का 0.6 टाइम्स है, तो इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे परसेंटेज इक्वेशन, परसेंटेज वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। सो percentage increase in volume was what? V2 minus V1 upon V1 into 100. V2 minus V1 की वैल्यू क्या है 0.6 V2, मैं नीचे भी लिख रही हूँ 0.6 V2 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से दिस बिकेम 0.4 V2 अपॉन 0.6 V2, V2 से V2 कैंसिल हो गया, ये आ गया, डेसिमल हट गए, एंड दिस विल कम आउट टू बी 66.66%। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना 4/400/6, so this will come out to be this. So percentage increase in volume is equal to 66.66%. So this is another type of numerical जिसमें हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, हमें बताया है कि क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है, सो उसके बेसिस पे हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना था। चलिए एक और तरह का न्यूमेरिकल करते हैं। A sample of air occupies 10 liter at 127 degrees Celsius and 1 atm pressure. What volume of air will be expelled when it is cooled to minus 23 degrees Celsius at the same pressure? अभी क्या है कि एक एयर सैंपल है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम है 10 लीटर एट व्हाट टेम्परेचर, at temperature 127 degree Celsius, which is obviously equal to 400 Kelvin, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमें बताओ कि what volume of air will be expelled when it is cooled to minus, जब इसको -23 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, कूल किया, टेम्परेचर कम किया है, सो केल्विन में क्या हो जाएगा ये टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू 250 केल्विन, ओ सॉरी 250 केल्विन। सो ये टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगी। इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस तो जो हमारी V2 की वैल्यू आएगी वो लेस आएगी, रिड्यूस हो जाएगी वो। लेकिन इन्होंने कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब है कि जब ये वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी, जो भी वॉल्यूम आएगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम में से उसको माइनस करो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड। क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम हो गई, तो जो एक्स्ट्रा जो एयर थी वो तो कहीं टेम्परेचर लूज करने पे इट गॉट एक्सपेल्ड ना। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड इज इक्वल टू V2, सॉरी V1 ज्यादा है ना, तो V1 minus V2. So let us calculate V2. So again Charles law, V1 upon T1 is equal to V2 by T2. So V1 is 10 upon T1 is 400. V2 is, we have to calculate, and this is 250. So V2 is equal to 10 into 250 upon 400. So this ये कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया 25/4, and this is equal to 6.25 लीटर। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ V2। सो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड। सो देयरफॉर
वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, क्योंकि 10 लीटर से ये कम होके 6.25 लीटर हो गई है। सो एक्सपेल्ड कितनी होगी, V1 माइनस V2 विच इज 10 माइनस जो बाहर चली गई है बेसिकली टेम्परेचर कम करने पे 3.75 लीटर। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपेल्ड। चलिए अभी ये सारे न्यूमेरिकल्स थे ऑन चार्ल्स लॉ। ओके, सो मैंने काफी सारी बुक्स में से चूज करके आई हैव selected these numericals because I have found these are the most common types of numericals which come in exams, चाहे वो 9th में हो या 10th में हो। अगर आपके गैस लॉज हैं, ICSE के 9th में गैस लॉज हैं और CBSE के 11th में गैस लॉज हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं गैस लॉज पे, एंड गैस लॉज तो इनफैक्ट यूज होते ही रहते हैं। सो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं ऑन चार्ल्स लॉ। अब मैं जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रही हूँ ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ, ये है एमंटन्स लॉ पे। सो इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, मतलब इसमें फॉर्मूला भी डिफरेंट यूज हुआ है, बट ये प्रेशर और टेम्परेचर को के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। सो दिस पर्टिकुलर लॉ जिसे हम बोलते हैं एमंटन्स लॉ, जो बुक में बहुत कम बुक्स में मेंशन होता है, एमंटन्स लॉ, इट इज मेंशन्ड इन वेरी फ्यू बुक्स, या फिर बहुत छोटा सा एक एक बॉक्स में ही मेंशन्ड होता है। बट आई हैव सीन दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस लॉ, दे कम इन IIT एग्जाम्स। तो मैंने वहां देखा है कि वहां पे JEE के एग्जाम में ये आ जाते हैं। दे वेरी सिंपल, बट बिकॉज इतना एम्फेसिस नहीं होता, हम क्लास में इतना नहीं पढ़ते हैं इस लॉ के बारे में, तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, तो मैं एक ही न्यूमेरिकल करा रही हूँ इस पे, इट्स वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज एमंटन लॉ? सो इट इज नथिंग, जैसे हमने पहले किया है, हमने किया था बॉयज लॉ, फिर हमने किया चार्ल्स लॉ। बॉयज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ का था वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से रिलेटेड, तो दैट वाज V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। नाउ दिस इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये मुझे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लगा, सो आई थॉट ऑफ सॉल्विंग दिस, एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है P1 अपॉन T1 is equal to P2 upon T2. So at temperature T1, pressure of a gas is if P1, that at temperature T2, pressure of the gas will become P2. So ये direct relationship है pressure and temperature का, but keeping volume constant. So इसको यूज करके एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है that I'm going to solve here. A cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 14.9 atmosphere. So इस cooking gas सिलेंडर की प्रेशर होल्ड करने की मैक्सिमम कैपेसिटी जो प्रेशर विथस्टैंड करने की है दैट इज 14.9 ATM। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर अचीव, ये प्रेशर पे ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर कुकिंग गैस है, अगर किसी तरह से ये प्रेशर अटेन हो गया तो। द प्रेशर गेज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 ATM एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो सिलेंडर के ऊपर एक प्रेशर गेज, एक मीटर लगा होता है, जिसपे हमें इंडिकेशन होता है कि ये इसका अभी सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल्ड है उसका जो प्रेशर है राइट नाउ इज दैट इज मेंशन्ड, वो आ जाता है। तो अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उसका 12 ATM आ रहा है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग। सो टेम्परेचर बढ़ा तो गैस का ऑब्वियसली सिलेंडर पे इफेक्ट होगा उसका। तो एट व्हाट टेम्परेचर विल सिलेंडर एक्सप्लोड? ऑब्वियसली अगर सिलेंडर का प्रेशर इतना अटेन हो गया 14.9 ATM, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब ये 14.9 ATM प्रेशर हो जाएगा तो सिलेंडर विल एक्सप्लोड। एंड हमें कैसे पता चला कि वॉल्यूम कांस्टेंट है? बिकॉज gas is in the same cylinder, gas is confined to the cylinder, so obviously volume is constant, so volume is constant। तो किस टेम्परेचर पे आके ये सिलेंडर एक्सप्लोड करेगा?
जब प्रेशर उसका 14.9 atm हो जाएगा तब सिलेंडर एक्सप्लोड करेगा. सो बेसिकली व्हेन प्रेशर वाज 12 atm, at that time temperature was 27 degrees Celsius, that is equal to 300 Kelvin. So अगर प्रेशर, क्योंकि उसकी विच मैक्सिमम कैपेसिटी है 14.9 atm, ठीक है. सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर निकालना है. हमें क्या करना है, ये इक्वेशन यूज करनी है और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें टेम्परेचर निकाल देना है. सो दैट विल गिव अस द टेम्परेचर एट विच द सिलेंडर विल explode. So use Hamilton's law, P1 over T1 is equal to P2 upon T2. P1 is what? P1 is 12, T1 is 300, P2 is 14.9, T2 we have to calculate. This implies T2 is equal to 14.9 into 300 upon 12. 25. So this 14.9 into 25, this is equal to 372.5 Kelvin. So that is in Kelvin scale. So in degree Celsius scale, 372.5 minus 273, this is equal to 99.5 degrees Celsius. So at this temperature, the cylinder will explode. At this temperature, the cylinder will explode. Right? So this was one different numerical based on Hamilton's law. ठीक है, और ये बहुत मुझे अच्छा न्यूमेरिकल लगा, so that's why I thought of solving it here. So अभी I think आपको चार्ल्स लॉ पे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल गए होंगे. अभी आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप उसमें देखेंगे तो यू विल फाइंड मोर और लेस यही तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने यहाँ पे आज आपको एक्सप्लेन किए हैं. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम सीरीज I will be taking up ideal gas equation के numericals, okay, and I will be uploading it as soon as possible. So please check my after seeing this video. So probably next day after uploading this video, I upload my videos. So do check the videos on ideal gas equation जो मैं इसके बाद upload करने वाली हूँ. Okay.